Oh, hello. Hi friends, my name is Abhishek, and you know me. I was making videos in YouTube, and am also interested to make videos in Instagram. So I will be on there, and I want to also share some important thing which is very important for life. First important thing, we are struggling with, you know, loneliness, and also we want to talk someone, but we have nobody because we are in preparation, and we have to be left from the circle, which is not, you know, you knew me, you know what I want to say, that this circle, which circle is not uh, मतलब होता नहीं क्या कि वो सर्कल हमसे मैच नहीं करता. वी आर UPSC एस्पिरेंट, वी आर SSC एस्पिरेंट, and we also look into the that type of circle which is match for our goals. Like अगर मैं SSC एस्पिरेंट हूँ तो मेरे SSC एस्पिरेंट जैसा वाला होना चाहिए. अगर मैं UPSC का हूँ तो UPSC वाला जैसा होना चाहिए मेरे जैसे. तो ये सारी बातें हमारे अंदर होती हैं. तो लुक सो first thing, which is when we took a lot of time and we do not come back in preparation, and we took a lot of time for bounce back to in the preparation. What we should think, we should we consider, and how we approach, how we come back. So I have a small things which we take it in the life. First is organize. So many people in like me, they are not interested right now because of they took a lot of time. So they are excluding the this preparation because they had put much time for the preparation, but they do not find uh, good results, and they are the comparison and the you know surroundings and the environment, which is if you see that if many people are clearing the exam, and we are yet at here. So this is very very big challenge for us. So like what I thought, in morning my mother said to me that you should think about it, कि you are not preparing your exam and you are still sleeping and you become lazy, and you do not think about yourself, how will you go in your life. So let's understand your habit, let's see your routine. तो मैंने तो सोचा लेट्स ओके यार, हाँ तो सोचना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई टेल यू माई सिचुएशन इज आई एम totally totally not preparing for the examination yet. So it is very hard to me to prepare again, and I am in a second year, and my third semester exam is going on, and my fourth exam on 4th August. Okay, so it is very important for me to understand my routine. So I tell you my routine. ठीक है, I wake up 5 o'clock in morning, and after I go to washroom and brush. So after that I was मतलब थोड़ा गोबर निकाल दो गाय का, एंड देन उसके बाद थोड़ा फिर उसके बाद बाहर का कुछ झाड़ू उड़ू मार लो, या फिर उसके बाद फिर रोटी वगैरह बना लो, है ना. आई later I sorry earlier I started to make rotis. I want to help my mother because of if I am not doing this, she will slap me because of कि भाई तू कर क्या रहा है, तू पढ़ा हुआ है एंड यू स्क्रॉलिंग रील्स. इट्स नॉट गुड यार, इट्स नॉट गुड. तो मैंने सोचा यार भाई अब तो मम्मी की मदद कर लेते हैं, एंड लेट्स मेक रोटी फॉर मदर एंड फॉर फैमिली, and they will be happy for me to what I am doing right now. So I have a plus point to not to say
everyone कि यार आई एम नॉट डूइंग समथिंग, आई एम वर्किंग, आई एम फोकसिंग, सो प्लीज़ दिस इज़ माई प्लस पॉइंट फॉर माई होम. तो मैंने सोचा यार क्या करना चाहिए. माई फोकस इज़ टू टेल यू दैट वॉट आई थॉट. फर्स्ट ऑर्गेनाइज. जैसे हमारा सुबह से लेके फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रहता है, सॉरी मॉर्निंग से इवनिंग का तो रहता है, बट पता है ना कैसे करते हैं हम. सुबह उठे, खाया पिया, उसके बाद मस्त लेट जाओ, ठीक है. बट उसमें भी हम बहुत ऑर्गेनाइज चलते हैं, ठीक है. पहले उठते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं, फिर दांत साफ करते हैं, फिर उसके बाद अपने जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी का काम होता है जिसमें हमें मार पड़ती है, पहले उस काम को करते हैं. बट जिस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, सेम थिंग विच वी हैव टू बी डू विथ आर एजुकेशन. आर जो हमारा गोल है उसके लिए करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करना है, यही करना है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रायोरिटाइज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लगने वाली भाई मार से घर में पड़ती ना, जो अगर तुमने पहला काम नहीं किया, जैसे गोबर नहीं उठाया भाई आज, तो भाई गोबर होगा ज़्यादा, शाम तक पड़ेगी फिर मार, ठीक है. तो भाई सुबह ही टाइम उठा लो, इससे शाम तक बचेगा नहीं. सेम थिंग यहाँ पे भी लगा लो, काम कर लो अपना जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी वाला, ठीक है. तो ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज एंड सी दिस इज़ माई ड्यूटी. नॉट कि भाई सुबह थोड़ा काम कर लिया, ये तो काम है ही मेरा, बट पढ़ाई मेरी काम नहीं है, मैं तो भाई रील्स देखूंगा बैठ के. मतलब ऐसा तो नहीं आता, बट हम देखते हैं रील्स ज़्यादा, रील्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ओके यार, बट हम पढ़ाई को ड्यूटी नहीं देखते. मेरा फर्स्ट थिंग जो मेरा सुनना है, आई एम अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, आई नो कि हाउ वी थिंक, हाउ सोसाइटी थिंक. सो दिस इज़ माई अप्रोच टूवर्ड्स राइट नाउ. सो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ. थर्ड थिंग इज़ नो योर वर्क. जान लो भाई क्या क्या काम करना है. भाई पहले भाई कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, कौन सा किस काम को दे देना है किसी को. भाई लेते तू करिए वो काम, तो मैं नहीं करने वाला भाई, ठीक है. एंड उसके बाद है कंप्लीट. भाई कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा आज. जैसे कि अगर तुमने आज अपना काम नहीं किया, अगर गोबर तुमने अगर आज खाया नहीं ना भाई, तो तुम्हारी लंका लगनी है, ठीक है. शाम को तुम्हारे पड़ेंगे बढ़िया करके. और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुमने देखो सिंपल सा खेल है, अगर तुमने आज काम नहीं किया, अगर तुमने आज गोबर नहीं खाया, तो भाई शाम को टाइम तुम्हारे पड़ेंगे, ठीक है. चलो तुमने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी यार हम कल करेंगे, बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज इट विल बिकम मोर. गोबर मोर हो जाएगा एंड इट विल टेक मोर टाइम. समझ रहे हो. अगर तुमने किसी काम को अपनी पढ़ाई के उसमें एक सब्जेक्ट को छोड़ा, तो इट विल बिकम मोर एंड इट विल टेक मोर टाइम. एंड देन इफ़ यू कंबाइन बोथ ऑफ देम, इट विल टेक मोर टाइम. समझ रहे हो. तो इट विल टेक मोर एफर्ट, इट विल टेक मोर, मोर, you have to put your mind on it. And second things, it will bring more stress, more anxiety, more distress. So you will not get satisfaction, and satisfaction comes from this, and that is why it is very important. So these are the learnings. First thing is organize, prioritize and see the duty. Fourth thing is know your work. And fifth is complete right now. हो गया. जैसे कि एक दिन चल जाता है भाई, ठीक है, एक दिन चल जाएगा, बट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ना. ज़्यादा दिन तो बहुत तगड़ी मार पड़ती है भाई. तो लेट्स सी, ये 5 चीज़ें रख लो, काम आएंगी भाई. देख लो काम आएगी. माँ कसम खा के कह रहा, तुम भी मेरे तरह ही हो, एकदम नल्ले आदमी. सॉरी नल्ले तो नहीं हो, मतलब सॉरी पढ़ने के लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई देखो ये भाई टाइम जा रहा है, खत्म लगेगा. यू केयर योर सेल्फ. भाई तू ही करेगा अपनी केयर, नो बडी केयर योर सेल्फ. मम्मी पापा हैं अपनी जगह हैं, सब अच्छी बात है. आई हैव अ 2 फिलोसफी. भाई रख ले, काम आएगी बहुत अच्छी वाली. फर्स्ट थिंग इज़ एवरीबडी हैज़ समबडी. तेरे पास तो है नहीं, मुझे पता है. सेकेंड थिंग इज़ एवरीबडी इज़ बिहाइंड समबडी. क्यों भाई, अगर तू किसी को भी देखेगा ना, किसी को भी, उसके पीछे कोई ना कोई होगा. दैट इज़ वाई he has the ability to fight against someone, to fight against bad things, bad habits, and they have a moral courage. If somebody is not behind someone, he is not able to fight the negative things. He has no moral courage, even a physical courage. Because अबे तू लड़ाई पंगे करने आता है तो तेरे पीछे कोई होता है तभी तो पंगे करता है ना. पापा ही हो, भाई हो, लड़ते इस बात से. या बहुत से लोग होते हैं जो खुद के दम में लड़ते हैं. एंड दैट यू बिकम सेम थिंग. तुझे खुद के बलबूते में लड़ना होगा.
यू डोंट नीड समबडी, बिकॉज इफ़ यू एंटाइज योर सेल्फ, अपने उन पलों को याद कर भाई जब तू अकेले रहा. इफ़ आई एम सेइंग माई सेल्फ, मैं रनिंग करते समय जब मेरी चोट लगी थी तब मैं अकेला था. मेरे मम्मी पापा ने मेरा ख्याल रखा, सब ने ख्याल रखा. बट जब मैं दौड़ा था ना, जब मेरे पैर में एक बार चोट लगी थी तो मेरा मांस फट गया था. तो रिकवरी में 3 महीने लगे थे. एंड मेरी भर्ती आने वाली थी फ़ौज की, तो मुझे दौड़ना था. और फौज में जाना मेरा सपना है, तो मुझे वो पूरा करना है. तो फिर मैं दौड़ना स्टार्ट किया. उस पेन में जो मैं दौड़ा, उसमें मेरी मम्मी मेरे साथ में दौड़ी, पापा मेरे साथ में दौड़े. बट दे आर विद मी, दैट इज़ वाई आई हैव द पावर. तो मैं दौड़ सका. मुझे दौड़ना है क्योंकि मेरा सपना मेरे साथ था. क्योंकि भाई देखो, और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, अब हम हमारे मन में एक बात और होती है भाई, होता है एवरीबडी हैज़ समबडीज बिहाइंड, मतलब समबडीज बिहाइंड. ये तो मतलब भाई किसी न किसी के पीछे एक आदमी होता है, तो समझ लो और कर लो, ठीक है. वरना भाई समझ जाओ, तुम लौंडे हो, तुम्हें पता है. लौंडियों का मुझे पता नहीं है, लौंडों का मुझे पता है भाई. अपन लोग हैं लड़के, हमें सब पता है. अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड सो आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट मी extra. So right now I am a BA student. I have 3 subjects: sociology, political science and history. And थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में. एंड आई विल गिव यू समथिंग अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी, मतलब जो तुम्हें यू विल नेवर हर्ड अबाउट इट. तो इफ़ यू वॉन्ट टू न्यू अबाउट इट, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट कि यार क्या है हिस्ट्री में इतना अच्छा, तो मैं आई टेल यू कि दैट हिस्ट्री इज़ वेरी, मतलब मस्त है. जैसे तुम्हारी हिस्ट्री टेल यू दैट यू शुड नॉट डू दिस बिकॉज यू विल फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेज. भाई अगर इस लड़की ने, अगर तुझे भाई, तुम्हें लड़के हो, तुम लोग लड़कियाँ भी होती हैं, तुम्हें पता है भाई, तुम्हारा पास्ट टेल्स यू, तुम्हारा पास्ट जो तुम्हें एक्सपीरियंस देता है ना, दैट इज़ वाई यू विल रूल योर लाइफ, यू विल प्ले योर लाइफ एंड यू फॉलो योर लाइफ. भाई समझता है ना, दैट इज़ वाई. मस्त होके चलो. तो एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी इज़ ऑल्सो वेरी 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 प्यारी. यार तुम क्या बात कर रहे हो भाई, BA की पॉलिटी बहुत प्यारी है. इट इज़ कनेक्टेड टू UPSC एंड UPSC इज़ नॉट बिगर, ठीक है. अगर पढ़ोगे तो भाई पता लगेगा कुछ नहीं है. तुम्हारे लड़कों के लिए मतलब सबके लिए हलवा है, लड़कियों के लिए तो क्या बच्ची सी चीज़ होती है, बट हमारे लिए भी हलवा ही है भाई. तो आई विल टेल यू कि कैसे कैसे, ठीक है. एंड सोशोलॉजी, भाई सोशोलॉजी पढ़ना, इफ़ यू आर अ BA स्टूडेंट, you know you are also wanted to get the knowledge from the psychology. Psychology subject is very everybody's favorite, ठीक है. and everybody wants this subject. तो I want to say everyone to get this psychology subject, and also take sociology subject. And you know, we all get additional subjects. And sociology, psychology and history are related to each other. If you are focusing only psychology, it's not, you are missing something. You have to be take these additional supplementary books, because without history you will not understand somebody's mindset, okay. You will need, ठीक है भाई. This is very important. History is very important. And how somebody is changing, how world is changing, how society is changing, is very important to understand somebody, ठीक है. And you know, right now individualism and collectivism is very high, and collectivism is going to very, it is dying. If you see that there is no collectivism, everybody has an individualism system, because everybody is, the word ये स्कूल में हम बोलते थे यार, you are very selfish, and that selfishness is very important in life. If you are not selfish, you are not caring yourself, you are not giving respect for yourself. And if you are not selfish, you are making mistake. सच में यार bro, you have to become selfish. Selfish is very important. मुझे लग रहा है कि selfish is not important, but certain point में. I give you example. हम लड़कों क्या होता है, नहा नहीं पहुँचते,
ठीक है, दोस्त ने बोला ओए चल रहा हूँ, काम तो है पर चल ठीक है, चल तो चल देते हैं, बट माई वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई एम नॉट गिविंग माई वर्क्स too much respect. That is why this is the problem. So let's understand. Thank you so much. My phone's battery is यार ख़त्म हो रही है यार समझा करो. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बाय.